Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Dhammaya. Namo Dhammaya. Namo Sanghaya. Namo Sanghaya. Namo Namah. Namo Namaha. Om. Om. Ahum. Hum. Namo tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. So first of all we purified the ground. तो सबसे पहले हम भूमि को शुद्ध करेंगे. So we recite the Vajrasattva mantra 3 times. तो हम वज्र सत्व को 3 बार दोहराएंगे. And if you can imagine the pure Amrita pouring down on this place, purifying it. तो यदि आप कल्पना करना चाहते हैं तो कल्पना कर सकते हैं कि शुद्ध जो अमृत है वो इस तरफ आ रहा है और इस भूमि को शुद्ध कर रहा है. Then we will chant Om Vajrabhumi Ahum. तब उसके बाद हम ओम वज्र भूमि आहुम इसको दोहराएंगे. Going round 3 times. और 3 बार स्तूप की तरफ घूमते हुए. ओम वज्र सत्व समाया मानुपालया वज्र सत्व त्वनोपतिष्ठा दृढ़ो मे भव सुतोषो मे भव सुपोषो मे भव अनुरक्तो मे भव सर्वसिद्धि मे प्रयाच सर्वकर्मसु च मे चितं श्रेय कुरुहुम. हा 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 हो. भगवान सर्व तथागत वज्र मामे मुंच वज्री भव महासमय सत्व आहुम फट. Om Vajrabhumi Ahum. वज्र भूमि आहुम. ओम 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 वज्र भूमि आहुम. Then buried the peace vase at the base of the stupa. तो इसके बाद हमने जो शांति कलश है वो आधार में रखा था. And again we can remember there's 6,199 other ones all over the world. तो हम याद रख सकते हैं कि 6,200 कलश ऐसे पूरी दुनिया में मौजूद हैं. And Dilgo Khyentse Rinpoche's idea was that this would create a mood all over the world of peace. तो दिलगो खेंसे रिम्पोचे जो थे उनका यह विचार था कि पूरी की पूरी दुनिया में शांति का एक विचार स्थापित हो. And that hopefully this would be some contribution to making this a better world. तो यह इस विचार को एक तरीके से योगदान है. So while we're remembering that stupa, we're going to that vase, we're going to recite
Sabbe Sata Sukhi Hontu. तो जब वो कलश हमने स्थापित किया था तो हमने सब्बे सत्ता सुखी होंतु का पठन किया था। But we'll just spend a few minutes, few moments developing Maitri. तो इसको पठन दोबारा करने से पहले हम कुछ क्षण मैत्री विकसित करने के लिए उपयोग लाएंगे। Allowing our Maitri to spread from here all over the world. तो मैत्री यहाँ पर और पूरी दुनिया में, And then we'll start reciting and circumambulating. और उसके बाद हम दोहराना शुरू करेंगे और फिर स्तूप के चारों तरफ घूमना शुरू करेंगे। Sabbe Sata Sukhi Hontu. सब्बे सत्ता सुखी होंतु। 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 भूलना चाहिए कि विचार, इच्छाएं, ये सभी बल हैं। Our mental energy has an effect on the world. तो हमारी जो मानसिक ऊर्जा है वह संसार में एक प्रभाव छोड़ती है। So if we are developing metta, that will have some small effect in the direction of peace. तो यदि हम मेत्ता को विकसित कर रहे हैं तो यह शांति की दिशा में एक कदम बढ़ाएगा। So what we did next was to put in the Merudanda. तो इसके बाद जो हमने किया वो यह है कि मेरुदंड को स्थापित किया। And symbolically that gives the stupa life. प्रतीकात्मक रूप में यह स्तूप को जीवन देता है। The stupa is already alive. तो स्तूप जो है वह अपने आप में जीवित है। We're just giving it more form. तो इसको हम और अधिक रूप दे रहे हैं। And we symbolize the giving of life by placing the Merudanda. तो हम जीवन को प्रतीकात्मक रूप से इसको जीवन देने के रूप में हम मेरुदंड को स्थापित करते हैं। And by reciting the Vajraguru mantra. और वज्रगुरु मंत्र को दोहराते हुए। Because that mantra, as it were, is a mantra of life. तो एक तरीके से यह जीवन का मंत्र है। Om Ahung Vajraguru Padma Siddhi Hum. Om Ahung Vajraguru Padma Siddhi Hum. ओम आहूं वज्रगुरु पद्मा सिद्धि हुं। 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 So in our next ceremony we installed symbols of the Sangha. जो संघ रत्न का जो प्रतीक है उसको लेकर हम याद करने वाले हैं। You remember we put an image of the many-armed and 11-headed Avalokiteshvara.
तो हमने एक मूर्ति स्थापित की थी जो बहुत सारी भुजाओं और 11 सिरों वाली थी। which is a symbol in Bante's view of the order. तो एक तरीके से जैसे कि वो संघ का प्रतीक है बंते की नज़र में। Each of us an arm, a hand of Avalokiteshvara. तो हम सभी एक एक करके अवलोकितेश्वर की जो भुजाएं हैं वो हैं। Then we put a yellow robe, a red robe, and a blue robe. फिर उसके बाद हमने पीला, लाल और नीला ये हमने चीवर उसमें रखा था। It's a symbol of the three yanas, every branch of Buddhism, तो ये जो है 3 यानों के प्रतीक हैं। every branch of the Buddhist Sangha. तो हर शाखा में बौद्ध परंपरा के। And then we put a blue sari, a blue shirt, and a kesa. तो उसके बाद हमने एक नीली साड़ी, एक नीली शर्ट, तो जो कि सफ़ेद केसा है। Then we sealed it up. We all watched it sealed up, तो उसके बाद हमने उसको बंद होते हुए देखा and we heaped the earth on it, और उसके बाद हमने मिट्टी को उससे ढक दिया all of us together, और एक साथ हमने उसे मिट्टी से ढका। while we were reciting Om Mani Padme Hum. और जब हम ओम मणि पद्मी होम का उच्चारण कर रहे थे। So we'll recollect that. We'll reconnect with that by circumambulating, reciting Om Mani Padme Hum. तो हम उससे दोबारा संबंध स्थापित करेंगे, उसे दोबारा याद करेंगे ओम मणि पद्मी होम को दोहराते हुए स्तूप के चारों तरफ। ओम मणि पद्मे होम, 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 ओम मणि पद्मे होम। So while we're reciting that mantra, we're of course calling upon the Arya Sangha and the Bodhisattva Sangha. तो निश्चित रूप से जब हम इस मंत्र का उच्चारण कर रहे होंगे तो हम बोधिसत्व संघ और आर्य संघ को याद कर रहे होंगे And asking them to bless this stupa और उन्हें आग्रह कर रहे होंगे कि वो स्तूप को आशीर्वाद दें। and in a sense to be present in this stupa. तो एक तरीके से इस स्तूप में ही उपस्थित होने के लिए We're also linking up with all our Dhammacharis and Dhammacharinis throughout the world. तो जितने भी हमारे धर्मचारी और धर्मचारिणी पूरे विश्व में हैं, हम उनसे संबंध भी स्थापित कर रहे So हैं। they're with us while we're doing this work. तो वो हमारे साथ हैं जब हम इस कार्य को कर रहे हैं। And of course, through them, with all Dhammamitras worldwide, तो उनके द्वारा जो पूरे विश्व में धम्मित्र हैं। so now we come to the Dhammaratana. अब हम धम्म रत्न पर आते हैं। Now our job is to gain the blessings of the Dhamma. अब हमारा कार्य जो है वो यह है कि धम्म से हम आशीर्वाद लें। We're going to do this in stages. तो यह हम विभिन्न स्तरों में करने वाले हैं। We're going to first of all invoke the Bodhisattva of wisdom. तो सबसे पहले हम जो करने वाले हैं वो बोधिसत्व की जो प्रज्ञा है उसको याद रखेंगे। We're going to invoke Manjushri. तो हम मंजूश्री को शामिल करेंगे। Holds the book in one hand and the sword in the other. तो एक हाथ में उनके तलवार है, दूसरे हाथ में पुस्तक है। And we're going to ask for his blessings on this stupa. तो हम उनको याद करेंगे उनके आशीर्वाद के लिए, स्तूप के लिए, And through him gaining the presence of the Dhamma. और उनके द्वारा जो धम्म है उसकी उपस्थिति के लिए। So reflect on Dhamma. तो आप सभी धम्म पर प्रतिबिंबित कीजिए। The Dhamma is the ultimate nature of reality. धम्म जो है वो वास्तविकता की अंतिम सत्यता है। It's what the Buddha saw when he gained enlightenment. यह बुद्ध ने देखा जब उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया And then it's what the Buddha taught. और यही बुद्ध ने फिर बताया And it's the path that we follow. और यही वह मार्ग है जिसका हम आचरण कर रहे हैं। Om
arpajanadhi. Om Arpajanadhi. Om Arpajanadhi. Om Arpajanadhi. Om Arpajanadhi. Om Arpajanadhi. Om Arpajanadhi. Om Arpajanadhi. Om Arpajanadhi. Om Arpajanadhi. Om Arpajanadhi. Om Arpajanadhi. So first texts, these are in Chinese language. और सबसे पहला जो साहित्य है वह चीनी भाषा में है And they're Prajnaparamita texts. और यह प्रज्ञा पारमिता साहित्य है. So I think Mokshasara better offer the Prajnaparamita texts. तो मुझे लगता है कि मोक्षसारा सर्वोत्तम रहेंगी यहाँ प्रज्ञा पारमिता सूत्र को स्थापित करने के लिए. And then this is our own Saptang Puja. तो यह सप्तांग पूजा का ग्रंथ है And it has, of course, within it the puja which comes from the Bodhicharya Avatara. तो यह निश्चित रूप से वह पूजा रखती है जो बोधिचर्या अवतार से आई है. And it also has the puja from the Suvarna Bhashottama Sutra. तो इसमें जो पूजा है एक वह स्वर्ण भाषोत्तम सूत्र से भी आई है. Akash better offer this one. तो आकाश जी से ऐसा आग्रह है कि वो आएं और इसको अर्पित करें. And this is a Tibetan text. और यह तिब्बती ग्रंथ है. And it's a text on the Chö practice. तो यह Chö. तो यह चू प्रैक्टिस चू अभ्यास पर आधारित है. Which is a version of the offering practice. तो यह एक तरीके से जो अर्पण है उसके रूप का है. So it's a mandala offering practice. तो यह मंडल अर्पण अभ्यास है. But what is the mandala? लेकिन मंडल क्या है? It's you. यह आप स्वयं है. You imagine giving your body. तो आप कल्पना करते हैं कि आप अपना शरीर अर्पण कर रहे हैं. So Modini better offer that one. तो मोदिनी इसके लिए अच्छी रहेंगी. And another Chö text. तो for you. अन्य जो चू साहित्य है वह धम्मबोधि जी से आग्रह किया जाता है कि वे उसे अर्पित करें. So you have to give your own body while you're doing that. तो आप जब ऐसा कर रहे हैं तो आप अपना शरीर ही अर्पित कीजिए. This is the Sadhamma Pundarika Sutra. तो यह सधम्म पुंडरीक सूत्र है. And this is a particular favourite of Shiladitya's. तो यह शीलादित्य जी को मैं ऐसा आग्रह करता हूँ कि वे इसको अर्पित करें. Then I think Neha better offer one. This is the Bodhicharya Avatara. तो यह बोधिचर्या अवतार है और मुझे लगता है नेहा इसके लिए अच्छी रहेंगी. So this is our own teacher's great work, a survey of Buddhism. तो हमारे जो गुरु हैं उनका खुद का लिखा हुआ ये सर्वे ऑफ बुद्धिज्म है. And obviously Suchandra has to offer this. और यह मुझे लगता है सुचंद्र जी के हाथों द्वारा अर्पित किया जाना चाहिए. He's started translating it into Marathi. क्योंकि ये इसको मराठी में अनुवादित कर रहे हैं. अब निश्चित रूप से उनको यह संपूर्ण करना होगा. And now the Dhammapada.
और अब धम्मपद है, which is perhaps the epitome of the Buddha's teaching in the suttas. और एक तरीके से यह बुद्ध के सुत्तों का जो संकलन है सूक्ष्म रूप से वो इसमें किया गया है. And our resident Pali scholar Gunamega better offer that one. तो मुझे लगता है जो पाली की प्रख्यात हैं गुणमेगा जी, उनसे ऐसी आग्रह है कि वे इसे अर्पित करें. Bhagavan Buddha और उनके धम्म. तो यह भगवान बुद्ध और उनका धम्म है. Manjuvir better offer that one. तो मंजूवीर जी से ऐसा आग्रह है कि वो इसको अर्पित करें. And this is the Tarpe Dilam, और which is the text from which our 5 Mula Yogas are taken. तो यह थारपे डीलाम है जो 5 मूल योगा को संकलित रखता है. Sadhana Ratna better offer that. तो साधना रत्न जी से मैं आग्रह करता हूँ कि वो इसको अर्पित करें. You knew that one, did you? I have to learn all. So anybody who has a text that they want to offer, just come forward one at a time, say what the text is, and give it to me. तो मैं आग्रह करता हूँ कि जो भी आपने लिखा है वो आप आगे की तरफ लाएं और उसे कहें Say what जो it आपने is. लिखा है. एक एक करके आइए और जो आपने लिखा है वह सभी को सुनाइए. ये धम्मा है और उसमें धम्म वंदना लिखी है. इसमें लिखा है मेरा अवलुप्त मंत्र है, ओम मणि पद्मी ओम, मैं लिखा उसमें मेरा साधना है. ये भगवान बुद्ध और धम्म, उनका धम्म, उसमें से मैंने कुछ पैराग्राफ लिया है. तो उसमें विशाखा की दानशीलता जो है, और तो वो देखकर जो भगवान बुद्ध ने उनको लास्ट की जो लाइनें लिखी, हाँ. मतलब कही है, वो उसमें लिखी है. Ah, good. ये वजह सत्व साधना प्रैक्टिस है पूरी की पूरी मंत्रों के साथ. ये धम्मपद की कुछ गाथाएं हैं और बंदी का कुछ चेन है और बाबा साहब का भी कुछ है. मेरा मंत्र भी उसमें तारा. Oh, so much. इसमें धम्मपद है और त्रिरत्न वंदना भी है, वज्र सत्व का मंत्र है और भगवान बुद्ध आणि त्यांच्या धम्मातील शेवटच्या 446 पेजवरील 4 प्रतिज्ञा आहे. इसमें बुद्ध आणि त्या धम्माचे चॅप्टर आहे आणि 4 प्रतिज्ञा आहे आणि कोई मंत्र आहे. भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इसमें से जो भगवान बुद्ध ने क्या स्वीकार किया है, तो उसमें जो 10 बातें हैं वो मैंने लिखी हूँ. और मन सर्वधर्म का केंद्र बिंदु मन है, उसके बारे में लिखा है. I'm offering a text from Guru Padmasambhava, तो गुरु पद्म संभव के तरफ से जो एक ग्रंथ है वो मैं दे रहा हूँ. and it's about the unreality of past and future and even the present. तो यह एक तरीके से भ्रमात्मकता को बता रहा है, जो भूतकाल, भविष्य और जो वर्तमान है उसकी. तो मैंने धम्मपद की पहली 2 गाथाएं लिखी हैं जिसमें मन सभी होने वाली चीज़ों का अग्रणीय है. सभी अनुभव उससे ही उत्पन्न होते हैं. Okay. So maybe since Srimala has reached a certain age, she'd better just offer all of this. तो जैसा कि आज हम जानते हैं कि श्रीमाला जी का बर्थडे है, जन्मदिन है, और वो एक निश्चित आयु तक पहुंच चुकी हैं, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि ये सभी वे खुद अपने हाथों से अर्पित करें. ओम मारपचनाधी, ओम मारपचनाधी, ओम मारपचनाधी, ओम
मरपचनाधीः ॐ मरपचनाधीः ॐ मरपचनाधीः ॐ मरपचनाधीः Sarva